it will be there. So उसमें एक main point आता है anomalous behavior of water. So that anomalous behavior of water is also due to hydrogen bonding. Now what is this anomalous behavior of water? Generally क्या होता है? Generally किसी भी substance का जो solid होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है या फिर लिक्विड स्टेट की डेंसिटी ज्यादा होती है? solid Solid, yes. So density of solids is greater than density of liquid. But in water, what is happening? Ice can float on water. Yes, why? Because density of ice is lesser than density of water. ऐसा होता है. मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं तो आइस सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन अदर किसी भी और कंपाउंड की बात करो तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज लेसर देन दैट ऑफ लिक्विड, बट इन वाटर व्हाट हैपेंस? वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर. इज इट ट्रू और नॉट? तुम पूरा किसी भी आइस ट्रे में अपना पूरा ब्रिम तक पानी भर के रखो तो आइस क्यूब्स देखो तो थोड़े से ऊंचे तक थोड़े लेवल को क्रॉस करते हुए बनते हैं. ठीक है. What is the reason? All these reasons are due to this. And then density of water is maximum at what temperature? 4 degrees Celsius. 4 degrees. What is 4 the degrees logic behind Celsius. this 4 degrees Celsius? We will explain this, and this will be the end of this thing for today's class. एक और क्लास हम लोग कंडक्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की, बट उसमें मैं सिर्फ एक ब्रीफ चीजें जो थोड़ी बहुत हैं, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, डायमंड का स्ट्रक्चर, विच इज एक्सपेक्टेड कि तुम क्लास 10th में करके आए हो बट नहीं किया हुआ है, तो वी विल डिस्कस देम एंड वी विल टेक योर डाउट्स एंड वी विल फिनिश ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. मेजॉरिटी आज की क्लास में फिनिश हो गया एंड थोड़ा पॉइंट रह गए हैं, डाइपोल इंटरेक्शन और ये सब क्या है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फाइनली फिनिश ऑफ कर देंगे. ठीक है. एंड मैम वो एक्सेप्शनल बॉन्ड्स वाला हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. कौन सा एक्सेप्शनल बॉन्ड्स? मैम वो बनाना बॉन्ड्स एंड ऑल. हाँ तो मैंने वही तो बोला, हम वही चीजें करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में. अच्छा वो नेक्स्ट क्लास. ठीक है. हाँ. So density of water is maximum at 4 degrees Celsius. बाकी जो वो सब चीजें हैं वो इनऑर्गेनिक में जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे उस चैप्टर में करते जाओगे. जैसे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, तो ग्रुप 13 में फिर से पढ़ा देंगे बट यहाँ पे ब्रीफली पढ़ाएंगे बस इसे. ठीक है. So why it is maximum? All these properties are going to be explained by hydrogen bonding. Now what is the reason for this? Now what happens जब water solidify कर रहा होता है, मतलब Can water. you turn to the last slide for Peter, just you can a just second? see. I'll just told you the reasons. Just listen to it first. Okay. So water जब liquid state में होगा, so tell me intermolecular spaces क्या होंगी? Intermolecular spaces क्या होंगी? High होंगी. अब तुमने इसको कूल करा. Yes, no. कूल करने का मतलब क्या है? Water will try to get intermolecular spaces will start decreasing. Tell me, it will start decreasing or not decreasing? Ma'am, it will start decreasing. And when it starts decreasing, what happens over here is, जैसे ये water molecule है, ये हमारा एक water molecule है और ये दूसरा water molecule है, ये this is another water molecule. So what happens in this case? Sorry, I should have made it like this. To be precise, I should have made it like this. The bent structure. And the other water molecule like this, the bent structure. Okay, so what happens when water molecule starts coming closer? There is a tendency of developing an hydrogen bond and forming this hexagonal rings. Can you follow these hexagonal rings? Can you follow these hexagonal rings? Yes, ma'am. So जब water molecules आपस में पास में आने लगते हैं तो what happens? There is a tendency of formation of these hexagonal rings, and these hexagonal rings are filled with air. They get filled with air. So when we start cooling water, intermolecular spaces start decreasing. So what happens? Due to hydrogen bonding, what happens? There is a formation of hexagonal rings which are filled with air. Hexagonal rings are formed which are filled with air.
यू कैन से स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर जो कि एयर के साथ फिल्ड हो, ठीक है। और ये कहाँ पे स्टार्ट होता है, जब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने लगता है। और ये डिक्रीज कब होता है, मतलब जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट हैपेंस, इन रिंग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एंड ये रिंग्स जो होती हैं एयर से फिल हो जाती है। तो आइस के केस में क्या हो जाता है, जब तक 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है वाटर, ये पूरी तरीके से रिंग्स जो है बन चुकी होती हैं। आइस at 0 degrees Celsius, what happens? Rings are there filled with air. With air. Now, what do you think? अगर तुम्हारे पास ऐसे hexagonal rings बन जाएं और air भरी हो उनके अंदर, तो volume of ice will be higher than water or lesser than water? Higher than Higher. water. That is the reason, that Higher. is because of these hexagonal rings, what happens, volume of ice becomes greater than that of water. Mass दोनों का same है क्योंकि same amount में रखा था, amount of water is same. So what will happen to density? What is the formula for density? Mass by volume. Mass upon volume. Mass upon volume. Mass is same, volume is different. So what will happen to density? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। Decreases. Density decreases, and that is the reason ice starts floating on water, and that is very good. Ice floats on water. That is good for the survival of aquatic life. Okay, nature ने उसको इसलिए बनाया है good for the survival of aquatic life, because you know air is a bad conductor of heat or good conductor. Bad. Okay, so what happens, air creates a blanket. Okay, it creates a blanket. ये जो air water जो ऊपर ice जमी है वो क्या हो जाती है, it being a bad conductor, it creates a blanket between water and the cold air outside. तो जिसकी वजह से अंदर का जो पानी है वो freeze out नहीं करता और aquatic life आराम से survive कर जाती है. So this low density of ice, or you can say ice floating on water, is a blessing for the aquatic life. अदरवाइज क्या होता है, अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा होती तो क्या होता है, आइस नीचे सेटल होती, नया फ्रेश वाटर ऊपर आता, फिर वो कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आता तो पूरा लेक फ्रोजन हो जाता, पूरी वाटर बॉडी फ्रोजन हो जाती. बट ऐसा नहीं होता है. कैन यू गेट द रीजन फॉर इट नाउ? कैन यू गेट द रीजन फॉर इट? ठीक है. Yes, ma'am. एंड देन दूसरा पॉइंट, व्हाई डेंसिटी, वी से डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम at At 4 degrees degree Celsius. Celsius. Why it is so? Because मैम ice, बिकॉज जब 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करते हैं तो सारा एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में चले yes, जाता है, उसके ice at बाद 0 डिक्रीज. degree Celsius is filled with air. Filled with air का मतलब क्या हो गया, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, हाई है. हेक्सागोनल रिंग्स बनी है. उसके बाद फिर जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, वो जो हीट होती है वो किस में यूटिलाइज होती है, हीट जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं, इट इज यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड. सो दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ब्रेक द hydrogen bonds. Okay, this is utilized to break the hydrogen bonds. And then क्या हो जाता है, जब वो हमारा वाटर पे बनता है ना 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक जितनी एनर्जी तुमने दी है वो यूटिलाइज हो रही है इन ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड. एट 4 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज हैपनिंग, ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन. सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट चुके हैं, रिंग्स एयर फ्री हो चुकी है. 1 मिनट, लेट मी फिनिश. एयर फ्री हो चुकी है एंड यहाँ पर जो वाटर पार्टिकल्स हैं आर क्लोजेस्ट, वाटर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजेस्ट. तो वाटर मॉलिक्यूल क्लोजेस्ट होने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम और मिनिमम. Minimum. वॉल्यूम मिनिमम हो गई तो डेंसिटी क्या हो गई, Maximum. और अगर हम इसको 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाएं, टेम्परेचर अबव 4 डिग्री सेल्सियस, सो डिक्रीज ऑन करना शुरू हीटिंग हो दैट जाएगा. मींस वॉल्यूम बढ़ने देयर इज लगेगी। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. Expansion. Expansion. Expansion मतलब वॉल्यूम विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, space between the particles will also start increasing and again the density will start decreasing. So यहाँ पे maximum क्यों होती है, अब समझा रीजन, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट 4 डिग्री पर पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं.
ठीक है, सॉलिड स्टेट में भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द एयर फिल्ड इन द हेक्सागोनल रिंग्स। दैट इज क्रिएट्स द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, कि बाकी सब चीजों में सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, बट आइस के केस में वॉल्यूम बढ़ जाता है। रीजन समझ में आया? रीजन Yes, समझ ma'am. में आया? Okay, now someone had to say something.